Welcome to our YouTube channel. In this video, we about the important question of psychology section. So, first question is why students should play games in school? तो जो students हैं वो games school में क्यों खेलते हैं? तो options are first A. It makes them physically strong. B. It makes work easier for teachers. C. It helps in passing time. या D. It develops cooperation and physical balance. So its answer is option D. It develops cooperation and physical balance because स्टूडेंट्स के अंदर कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो डेवलप होगी और उनका जो फिजिकल बैलेंस है वो भी इंक्रीज होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग वुड बी मोर इफ़ेक्टिव इफ़ द टीचर. तो टीचिंग जो है वो मोर इफ़ेक्टिव बन सकती है अगर टीचर क्या है. फर्स्ट ऑप्शन इज मेक्स हिज इंटेंट पर्पजफुल. बी is master of the subject. C uses various instructional aids. या D declares his objectives in the beginning. So its answer is option C uses various instructional aids. तो टीचर को जो है वो various instructional aids का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे ब्लैक बोर्ड, ऑडियो टेप, विजुअल कोई भी ग्राफ, चार्ट, कोई भी विजुअल 3D paintings etc. Next question is rescue major contribution to modern education was the. तो जो रेस्क्यू जो मेजर कंट्रीब्यूशन मॉडर्न एजुकेशन पे क्या था. सो ऑप्शंस आर फर्स्ट किंडरगार्टनर. बी philanthropy. सी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टीचिंग. या डी फिलोसफी ऑफ न्यूट्रलिज्म. So its answer is option D, philosophy of naturalism. So philosophy of naturalism means education is given to the child according to his age and by keeping his needs and abilities in mind. तो एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को दी जाएगी अकॉर्डिंग टू उसकी जो एज है उसकी अकॉर्डिंग दी जाएगी और ये माइंड में रखा जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसकी क्या नीड्स है और उसकी एबिलिटीज़ क्या है. So next question is a child can think logically about objects and events. This is the characteristic given by the Piaget of stage. तो एक जो child है वो logically सोचता है ऑब्जेक्ट्स को लेकर और इवेंट्स को लेकर. ये पियाजे की किस स्टेज में है ये characteristic आता है. So options are A sensory motor, B pre operational, C concrete operational या D formal operation. So its answer is C option that is concrete operational. So पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी. फर्स्ट इज सेंसरी मोटर. तो इसमें 0 to 2 ईयर्स आता है. देन प्री ऑपरेशनल उसमें 2 to 7 ईयर्स आता है. देन कंक्रीट ऑपरेशनल इसमें 7 to 11 ईयर्स आता है. एंड लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशन इसमें 11 टिल अडल्टहुड आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड. इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रिलेट नहीं करती है सोशियो साइकोलॉजिकल चाइल्ड की नीड्स के साथ. सो ऑप्शंस आर ए नीड फॉर एप्रिएशन और social approval. B need for emotional security. C regular elimination of waste products from the body. या D need for company. So its answer is option C regular elimination of waste products from the body. सो रेगुलर एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से रेगुलर एलिमिनेशन जो होता है इसका कोई रोल नहीं है सोशियो साइकोलॉजिकल नीड चाइल्ड की नीड से. So option C. Next question is which of the following is the true statement in reference to intelligence. तो इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो वो ट्रू है इंटेलिजेंस को लेकर. सो ऑप्शंस आर A intelligence is the ability to adjust. B intelligence is the ability to learn. C intelligence is the ability of abstract reasoning. या D all of these. So answer is option D all of these. ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो इंटेलिजेंस की रेफरेंस में
ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, माइंड मैपिंग रेफर्स टू। तो माइंड मैपिंग किसे कहते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, a technique to enhance comprehension, option B, a plan of action for an adventure, option C, drawing the picture of the mind, या option D, researching the functioning of the mind. So its answer is option D, researching the functioning of the mind. तो माइंड मैपिंग जो है वो रिसर्च करना माइंड की फंक्शनिंग को उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायगॉस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो बायगॉस्की ने क्या प्रपोज किया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? तो ऑप्शंस आर ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ अ कल्चर, ऑप्शन बी अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन सी अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन डी अ प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि बायगॉस्की ने जो है वो सोशल इंटरेक्शन और के ऊपर ही चाइल्ड को लेकर जो है वो थ्योरी दी है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, children thinking is grounded in concrete experiences and concept rather than abstractions, it is the stage from। तो क्वेश्चन है कि जो चिल्ड्रन की जो थिंकिंग है कंक्रीट एक्सपीरियंस को लेकर और कॉन्सेप्ट को लेकर वो रेदर देन ऑब्स्ट्रैक्ट से ग्राउंडेड है। तो इस स्टेज को वो ये स्टेज किस कहाँ से कहाँ की ईयर की शो करती है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 7 to 12 years, ऑप्शन बी 12 to adulthood, या ऑप्शन सी 2 to 7 years, या ऑप्शन डी birth to 2 year। So its answer is 7 to 12 year, that is option A। So 7 to 12 year, और ये हमारा सेम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 to 12 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10, द मेन वर्क ऑफ अ टीचर इज। तो जो टीचर का जो है वो मेन वर्क है वो क्या है? टू अरेंज द टीचिंग वर्क, टू गिव लेक्चर इन क्लासरूम, टू लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स, या टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, टू अरेंज द टीचिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज। आप जो है वो टीचिंग प्रोफेशन लाइक करते हैं क्योंकि ऑप्शंस आर इट हैज़ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी यू आर इंटरेस्टेड इन, ऑप्शन सी इट इज़ ईजी, या ऑप्शन डी इट प्रोवाइड यू मोर हॉलीडेज। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, यू आर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में जो है वो इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एज अ टीचर यू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट which strongly resist any change in the system, but you will do। क्वेश्चन है अगर एज अ टीचर आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और विच स्ट्रांगली से और उसमें आप एक चेंज लाना चाहते हैं सिस्टम में, तो आप उसमें क्या लाएंगे? सो ऑप्शंस आर कम टू द एनवायरमेंट, ऑप्शन बी ट्राई टू शो ऑफ योर superiority, option C make the principal aware of new ways, techniques and convince staff, या option D start criticizing old ways। so answer is option C, that is make the principal aware of new ways, techniques and convince staff। तो आप नए तरीके का यूज़ करेंगे, नए टेक्निक्स का यूज़ करेंगे और स्टाफ को भी कन्विंस करेंगे अपने वेज को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13, यू हैव रीड न्यू बुक फुल ऑफ न्यू आइडियाज, वुड यू। कि आपने एक नई बुक पढ़ी फुल ऑफ न्यू आइडियाज को लेकर, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कीप दिस आइडियाज ओनली टू योर सेल्फ, आप उन्हें अपने तक सीमित रखेंगे। ऑप्शन बी शेयर दीज आइडियाज़ विद द नंबर्स ऑफ योर फैमिली, आप उन आइडियाज़ को अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे। या सी शेयर दीज आइडियाज़ विद द स्टूडेंट्स ऑफ योर ओन चॉइस,
आप उन आइडियाज़ को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे जिनको आप पसंद करते हैं। या ऑप्शन डी, शेयर दिस आइडियाज़ विद योर क्लास, और आप उन आइडियाज़ को अपनी क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, शेयर दिस आइडियाज़ विद योर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what should we done for teaching the qualities of a good citizen? आप क्या ऐसा करेंगे कि एक गुड सिटीजन की क्वालिटीज़ को आप बच्चों को टीच कर सकें? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू वर्क कोलेक्टिवली फॉर सम टाइम। या ऑप्शन बी, दे शुड बी आस्क्ड टू रीड लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। या ऑप्शन सी, टीचर्स शुड डिलीवर लेक्चर्स ऑन सिटीजनशिप। या ऑप्शन डी, कलेक्शन और डोनेशन फॉर collective work. So its answer is option A, they should be given opportunity to work collectively for some time. कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वे काम कर सके collectively कुछ टाइम के लिए। So next question is, if you open a school, you close a prison. It means that स्टेटमेंट है कि अगर आप एक स्कूल ओपन करेंगे तो आप एक प्रिजन, जेल को बंद करेंगे। तो इसका क्या अर्थ है? सो ऑप्शंस आर, स्कूल आर बिल्ड ऑन द लैंड वेयर दे वर प्रिजनर्स। ऑप्शन बी, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड क्राइम। या ऑप्शन सी, स्कूल चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स एट प्रिजन बिल्डिंग। या ऑप्शन डी, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ए स्कूल कॉजेज मच ब्रीफ एंड पेन टू प्रिजन ऑफिसर्स। सो आंसर इज ऑप्शन बी, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड क्राइम। कि जब एजुकेशन की स्प्रेड होगी, एजुकेशन फैलेगा,